Hello students, welcome to MDC Learning, Standard TY BCom, Subject Export Marketing, Chapter Export Finance, Topic Commercial Bank as well as Exim Bank. In this video, we are going to understand about the commercial bank and role of Exim Bank. Commercial bank, the major part of export finance is provided by the commercial bank. Okay, major facilities. Okay, the function of commercial bank can also be grouped into two parts, that is fund based assistance, non fund based assistance. Fund based assistance and non fund based assistance is provided by the commercial bank in respect of export finance, which is categorized into two parts, fund based assistance and non fund based assistance. Okay, fund based assistance is at pre-shipment as well as post-shipment. When we talk about pre-shipment, the commercial banks provide finance on short-term basis for a normal period of 180 days at a very concessional rate of interest. Okay, very concessional rate of interest, बहुत उसका concession रहता है, but उनका normal period ही 180 days रहता है. The various forms of advance are cash packaging credit loan, advance against hypothecation, advance against pledge, etc. Okay, ये सब प्री शिपमेंट स्टेज में. Okay, now we have also the post shipment stage. The commercial bank provide finance at the post shipment stage normally for a period of 90 days. प्री शिपमेंट के लिए 180 days and पोस्ट शिपमेंट के लिए 90 days at a concessional rate of interest. The various forms of post shipment finance are negotiation of bill drawn under LC, purchase discounting of bills, overdraft against bill under collection. ओके, ये पोस्ट शिपमेंट में जिनको सिर्फ 90 डेज मिलता है, बट उनको मेन इम्पॉर्टेंट क्या देना रहता है, नेगोशिएशन ऑफ बिल ड्रॉन अंडर एलसी, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल देना रहता है और ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट बिल अंडर कलेक्शन. ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है. वैसे ही कमर्शियल बैंक का नॉन फंड बेस्ड असिस्टेंस है, दैट इज़ बैंक गारंटी. Reserve Bank of India has authorized commercial banks to issue guarantees and furnish bid bonds in favor of overseas buyer. Okay, मतलब bid bonds means उन लोग bonds या agreement या guarantee favor में दे सकते हैं. Prior permissions of RBI is not required except in case of exports of capital goods under deferred payment. Okay, RBI का परमिशन प्रायर नॉट रिक्वायर्ड रहता है क्योंकि वो गारंटी देता है और ये गारंटी पहले से RBI बैंक्स को इशू करके रखता है, भाई तुम ये गारंटी ले सकते हो. ओके, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने दो, कंसल्टेंसी होने दो, टेक्निकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होने दो, एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट जो भी है, ये आप बैंक गारंटीज में द्वारा इशू कर सकते हैं. ओके, बहुत सारा बैंक गारंटीज़ है. फॉर एग्जांपल गारंटी फॉर फॉरेन करेंसी लोन. ओके, उसको सैंक्शन किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड में टू इंडियन एक्सपोर्टर हु रेज फंड्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट अब्रॉड. देन वी हैव परफॉर्मेंस. ओके, परफॉर्मेंस गारंटी which is generally required in export of capital goods and also in case of turnkey and construction project. मतलब पहला जो गारंटी फॉर फॉरेन करेंसी लोन से वो ऐसा सैंक्शन करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड वाले इंडिया को टू फंड रेज करने के लिए. ओके, इसको बोलते हैं गारंटी फॉर फॉरेन करेंसी लोन. वैसे ही परफॉर्मेंस गारंटी में विच इज़ जनरली रिक्वायर्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स and also in case of turnkey and construction project. Okay, ये performance guarantee में रहता है. बैंक इशू अ गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ रिटेंशन मनी. पहला परफॉर्मेंस गारंटी में एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है.
फिर गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ रिटेंशन मनी में ओवरसीज पार्टी हु वुड रिलीज द रिटेंशन मनी टू द इंडियन पार्टी, ओके, मतलब ओवरसीज मनी अब्रॉड, दे विल रिलीज मनी टू द इंडियन पार्टी ओनली आफ्टर रिसीविंग गारंटी फ्रॉम बैंक, ओके। उनको अगर बैंक गारंटी देता है तो वो पैसा रिलीज़ करेंगे। पहला कैसा था, गारंटी फॉर करेंसी लोन्स के ऊपर मिलता था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड वाले इंडिया को देते थे फंड रेज करने के लिए। फिर परफॉर्मेंस के ऊपर होता था, ओके। और उसके बाद गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ रिटेंशन मनी बाय द ओवरसीज पार्टी वुड रिलीज द रिटेंशन मनी टू द इंडियन पार्टी, okay. Then we have the banks also issues advance payment guarantee to the overseas buyer who normally makes certain advance payment to the Indian exporter, okay. एडवांस पेमेंट जो गारंटी के हिसाब से मिल जाता है ओवरसीज बायर से, और ये जो एडवांस पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर को बैंक गारंटी के द्वारा मिलता है। बैंक इशू बिड बॉन्ड्स टू द एनेबल एक्सपोर्टर्स टू द प्राइवेट इन वेरियस ग्लोबल टेंडर्स, ओके। बिड बॉन्ड्स भी हम लोग वेरियस टेंडर के हिसाब से बना सकते हैं। देयर आर अदर सर्विसेज, दे कलेक्ट एक्सपोर्ट प्रोसीड फ्रॉम द इम्पोर्टर एंड क्रेडिट द सेम टू द एक्सपोर्टर, मतलब कलेक्ट करते हैं इम्पोर्टर से और क्रेडिट करते हैं एक्सपोर्टर का अकाउंट में, ये भी सर्विस मिलता है। बैंक असिस्ट करता है एक्सपोर्टर इन कलेक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फ्रिट चार्ज एंड ऑल्सो अदर चार्ज, वो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किधर तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, वह अपना यूज़फुल जगह का इंफॉर्मेशन जो है वो भी, और बायर्स को क्या कहाँ पेमेंट करना पड़ेगा वो भी दिखाता है। द बैंक इश्यूज बैंक ड्राफ्ट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ फ्रिट चार्जेस एंड अदर चार्जेस, ओके। और बैंक ड्राफ्ट भी देता है फ्रिट चार्ज पेमेंट करने का और अदर चार्ज पे करने का। Even banks send a duplicate copy of GR from to the RBI after realization of export produce. एक बार realization हो गया है तो export proceed करने के लिए बैंक का GR भी ट्रांसफ़र करता है। The bank issues bank credit in respect of export sales value which are useful for claiming incentives, okay. ये सब सर्टिफिकेट संभाल के रखते हैं जिससे उनको इंसेंटिव्स ले सकते हैं, ओके। अभी अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ एग्जिम बैंक का। इसका पर्पस क्या है, मेन इसका पर्पस, इसको एग्जिस्ट हुआ था 1982 में, ओके। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका ब्रांच एंड ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड, ओके। इसका पर्पस फाइनेंस फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू द एक्सपोर्टर, देयर बाय प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ओके। दे कैन प्रमोट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में। उनका पर्पस ही वो है कि वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करें। उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंस असिस्ट करना लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म को, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंगेज इन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, उसको फंक्शंस है प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंगेज इन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ओके। फॉरेन ट्रेड प्रमोट करने का, to deal with all other matters which is considered to be the incidental or conductive to the attainment of more and more objectives, okay। ये all properly deal करना। functions ऐसा ही same thing, fund based and non fund based। पहला अपन fund based का देखेंगे। assistant finance assistant to deferred credit export, okay। डिफर्ड क्रेडिट एक्सपोर्ट पर्टिकुलर टाइम दिया है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज़, फाइनेंस इंडियन जॉइंट वेंचर इन फॉरेन कंट्रीज़, जितना हो सकता है जॉइंट वेंचर इंडिया कंपनी एंड फॉरेन कंट्रीज़ को साथ में करो। फाइनेंस यूनिट इन सीज एंड 100% EOEs, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ 100% यूरोपियन यूनियंस को साथ में प्रोवाइड करो। It provides pre-shipment finance to the exporters for procuring raw material and other input, okay। Procure proper raw materials and as well as input which are necessary for the manufacture of machineries and equipment to be exported,
जो इनपुट्स नेसेसरी है, जो मैन्युफैक्चर करना है, वो मशीनरी जो नेसेसरी है और इक्विपमेंट जो भी नेसेसरी है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें इट फाइनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन द लीज बेसिस, रेंट बेसिस में करते हैं मोस्टली। It provides computer software exporters foreign exchange loan subjected to RBI clearance। मतलब ये जो भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज लोन के द्वारा वो RBI क्लियरेंस के बाद ही वो काम हो सकता है। Then Indian commercial banks provide refinancing facilities so as to enable commercial bank to offer credit to Indian exporters who extend term credit to importers. Okay. What they are extending? Term credit to the importers. Okay. And it offer export bill rediscounting facility to commercial bank in India who have earlier discounted bill of exporters. Okay. रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ मिलना और उसको डिस्काउंटेड बिल में लेके आना, असिस्टेंट ओवरसीज बायर्स, इम्पोर्टेड ऑफ इंडियन कैपिटल गुड्स उसका फैसिलिटीज़ देना, ऐसे सब सर्विसेज देते हैं इंडियन कमर्शियल बैंक में। ओके, ओवरसीज बैंक्स long term finances also provide under lines of credit to the financial institution abroad who in turn extend finance to the importers of their country to buy Indian capital goods. Okay, it provides re-lending facilities, again giving more facilities to the overseas bank to make available finances for their clients of India। इसका ये इम्पोर्टेंस है कि उनके पास पैसा देना चाहिए ताकि वो इंडियन क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सेम थिंग नॉन फंड बेस्ड असिस्टेंट में भी गारंटीज एंड बॉन्ड्स, कुछ गारंटीज है, कुछ बॉन्ड्स है, परफॉर्मेंस गारंटी है, कमर्शियल बैंक के जैसा ही इसमें भी फॉलोअप करते हैं। एडवाइजरीज एंड सर्विस वैसा ही रहता है कि एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रॉड के साथ सर्विस देना, ग्लोबल एक्सचेंज कंट्रोल प्रैक्टिस करना, एडवाइजरी सर्विस टू द इंडियन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अब्रॉड, एडवाइस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एडवाइजरीज एंड अदर सर्विसेज में मिलता है, जो स्मॉल एंड मीडियम टर्म को भी बहुत सारा हेल्पफुल होता है फाइनेंशियल रेस करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड के द्वारा। Thank you.